एंड ये जो गैप है ना, अभी जो बात हो रही है आजकल, जेनजी ऐसे हैं, जेनजी वैसे हैं, इस पे और बात होनी जरूरी है। To do is we need to understand the future is this generation, जिसे हम जनरेशन जी बोलते हैं, और इन शॉर्ट जेन जी बोलते हैं। Hello everyone, I welcome you all to another episode of Sip and Sync with Gen Z. Today we have a very special guest with us. You've heard him on the Supreet Singh show with Bollywood stars, fearless founders, and change makers with raw, unfiltered conversations. But today the tables turn. Off the mic, he's a multi award winning entrepreneur and the force behind Psychocare Health. On Sip and Sync, we are flipping the script a little. You get to see the storyteller become the story himself. Stick around because this one's going to be bold, real, and unforgettable. Thank you so much for being here today with us, sir. No, it's a pleasure. It's a pleasure, and you're doing a great thing by talking about a very important subject. This is what I feel needs to be talked about more and more. And Right. it's a pleasure for me being a part of the journey what you have started, and ये जो गैप है ना, अभी जो बात हो रही है आजकल, जेनजी ऐसे हैं, जेनजी वैसे हैं, इस पे और बात होनी जरूरी है। इनफैक्ट आई आल्सो डिड वन स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड ऑन जनरेशनल गैप। Yes, yes. वी टॉक्ड अबाउट जेनजीज, और जो भी आजकल ओवर हाइप्ड वर्ड बना हुआ है। Right, तो right, right. ग्रेट। Right, sir. Sir, so before I dive into Gen Zs in general, I would like to know a little bit about your journey, how you started in pharma, how it all came to you. ऑनेस्टली टेलिंग, मुझे अभी भी लगता है कि I've just begun, so it's I haven't achieved a lot अभी तक उस पॉइंट ऑफ व्यू से। I am an engineer by qualification, and इंजीनियरिंग के टाइम में ही मैं आर्टिस्ट बन गया था। तो आई वाज अ डांसर एंड एन एक्टर, और एक परफॉर्मर, और ब्रॉडकास्टिंग का शौक था उसी समय। Well, And, जैसे इंजीनियरिंग खत्म हुई तो मुझे ये पता चल गया था कि आई एम नॉट सपोज टू बी एन एन इंजीनियर, बट मैंने इंजीनियरिंग जरूर टाइम पे खत्म कर ली थी। well, वेंट टू कनाडा, परसूड, सॉरी फॉर माय बैड फॉर कोल्ड एंड कफ। सो ये थोड़ा सा बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ सीजन और वट एवर, सो आई एम गोइंग थ्रू no दिस। worries. तो उसके बाद कनाडा गया, कनाडा जाके, सो आई कैन टॉक इन हिंदी एज वेल, राइट? Yeah, और yeah. यू नीड टॉक Anything. ओनली इन इंग्लिश? Anything works. Because I want to keep it very candid. Yeah, yeah, it'll be better. Right. Okay. Went to Canada, pursued a diploma in broadcasting and performing arts from one of the oldest schools of broadcasting back then, Columbia Academy. Worked in radio, television, worked as a producer as well, a presenter, a reporter, did multiple things. Uh, One fine day, decided to come back to India, wanted to do some business, was not sure what business, but I wanted to start an enterprise. उस समय लगा था कि रेडियो स्टेशन शुरू करूंगा या कुछ ऐसा पॉडकास्ट शुरू करता हूँ उस समय। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 2012, एंड बिजनेस की इतनी नॉलेज नहीं थी। तो बट फिर लगा कि रेडियो स्टेशन खोलना तो बहुत महंगा काम है और ये लंबा काम है। पॉडकास्टिंग में अभी लोगों को इतनी समझ नहीं थी, एंड आई वाज Right. नॉट एबल टू सी मच कि इसमें कैसे रेवेन्यू होगा। I don't know how I landed up starting Psychocare. So it was started by me and my father in 2013. We started with 17 products. Today we have more than 1,200 products in multiple segmentations, over 400 plus trademarks, and a recently granted patent as well. Uh, and it just happened, I would just move with the flow, and had to leave my journey as an artist for almost 10 years before restarting uh,
through the Supreet Singh show in 2023 and अब ऑलमोस्ट 90 से ज्यादा एपिसोड्स कर चुके हैं उसमें। तो अभी 6 महीने पहले आई रीस्टार्टेड माय जर्नी एज एन एक्टर अगेन, सो दोबारा से ट्रेनिंग्स ले रहा हूँ उसमें। और बस यही चीजें करते रहते हैं। तो That is just great. making the most of everything, whatever opportunity comes. So I'm just going with the flow. That is a very inspirational story for our listeners as well. Uh, Yeah, but I'm very honest. I'm just begun. अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ। अब समझ आ रहा है कि and you know the most important thing what I've learned is you need to be you need to be very, very sensitive to everything around you. right, We have gotten to become what we actually are. हम इन ह्यूमंस बनना भूल गए हैं, बहुत रोबोटिक हो चुके हैं सभी। वी बिकम correct, टू shrewd इन थिंग्स। हम सेंसिटिव वैसे हो चुके हैं अपने लिए, कितना आई एम टू सेंसिटिव कि बुरा बहुत जल्दी बना जाते हैं। बट right. हमारे आसपास क्या हो रहा है उसके चीजों को लेके हम वी आर वेरी इनसेंसिटिव। जैसे Correct. जेंजी की बात हो रही है, Hmm. इजीली बोल देते हैं ये तो जेंजी है, इनको कुछ नहीं पता। Hmm. बट आर यू इवन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द जनरेशन? क्या कर रहे Right, हैं? right, right. So there has been this very common debate that before people used to work for survival instinct and like they did not have other options and everything. But this time we have so many options online. We have freelancing and we have multiple job switch ke options. So because of this, people also say कि Gen Z are not they're not loyal, they're not very consistent. तो आपका क्या view है about this? देखो, अटेंशन स्पैन तो बहुत कम हुआ है और कुछ चीजों में एक बड़ा रियलिस्टिक सी चीज बोलता हूं मैं। सो विच इज आई थिंक इफ दिस जनरेशन कैन अंडरस्टैंड दे कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, दैट Right, दिस जनरेशन इज बिकमिंग अ विक्टिम टू द सोशल मीडिया। कि right, सोशल मीडिया या इंटरनेट या टेक्नोलॉजी इज मेंट फॉर अस टू इवॉल्व। right, So we need to use it. The technology is currently using us. right, एंड वो एक फैक्टर है जिस वजह से अटेंशन स्पैन, पेशेंस, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटीज, ये सब चीजें थोड़ी बढ़ रही हैं। right, आवर रीडिंग हैज गॉन डाउन, वी आर अनेबल टू सिट फॉर अ while alone. We are actually I would love to ask कि अकेले कितनी देर बिना किसी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए के बिना कोई बैठ सकता है? तो वो नहीं है आज की डेट में। तो दैट इज अ डेटरिंग फैक्टर। एंड मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ ये, बहुत right, ज्यादा फोन टेक्नोलॉजी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप आधा घंटा कैन यू जस्ट वॉच अ ट्री और कैन यू जस्ट वॉच थिंग्स आउटसाइड? नहीं देखेंगे। वो right, इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि ध्यान जाएगा यार वो इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन है, या फेसबुक पे, फेसबुक तो चलो छोड़ो, स्नैपचैट पे है या थ्रेड्स पे है, वॉट एवर इट इज। तो ये चीज एक बहुत डेटरिंग है। And this is actually affecting. But on the contrary, just by shaming and blaming uh, this generation कि इनको कुछ नहीं पता, ये तो रातों रात अमीर होना चाहते हैं, ये सुन नहीं सकते, स्ट्रेस लेवल नहीं, इससे कुछ नहीं मिलेगा। right, एवरी जनरेशन जब से दुनिया शुरू हुई है हमेशा ये गैप रहा है और प्रॉब्लम्स रही है। right, तो अब जैसे बात कर रहे हैं कि हाँ, नो डाउट चीजें इजी हो गई हैं, तो बेसिक्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। लाइक फॉर एग्जांपल इंटरनेट की बात करें, अब इस right, समय इंडिया में आई थिंक ऑलमोस्ट 60-70 करोड़ लोग इंटरनेट यूज कर सकते हैं, विच इज अ बिग थिंग। अब वो right, बहुत अच्छी चीज है और ये एडवांटेज है, और उसमें हमें नहीं मिला तो हमें रोना नहीं चाहिए। अगर ये बेसिक्स अगर इस जनरेशन को मिली है तो वो right, उनका कसूर नहीं है ना। right, right, तो वो जेनजीज का कसूर नहीं है ना। right, बट एट द सेम टाइम what we need to do is we need to understand the future is this generation, जिसे हम जनरेशन जी बोलते हैं और इन शॉर्ट जेन जी बोलते हैं। तो वी नीड टू फर्स्ट, इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम और शेमिंग देम, वी नीड टू सिट विद देम, अंडरस्टैंड देम एंड चेंज आवर ओन सेल्स। right, अगर हम बदलने की कोशिश, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस जनरेशन को समझा जाए तो ये
जो है हमसे 10 गुना बेटर रिजल्ट्स दे सकते हैं। बिकॉज एक मैंने टर्म बड़ा अच्छा सुना था कहीं पे कि जो जनरेशन जी है, जेन जी है, तो दे आर डिजिटल नेटिव्स। राइट। दे आर बॉर्न विद टेक्नोलॉजी। जो उससे राइट। पिछले भी, लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम अ मिलेनियल, आई एम अ राइट। 90s वाला किड। तो राइट। जो 90s वाले हैं, हम लोग हम इमिग्रेंट्स हैं। बट ये है कि हम थोड़े से कम इमिग्रेंट हैं, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी जब हम कॉलेज में चले गए थे तो हमें मिल गई थी, या फिर स्कूल 10+2 के टाइम आनी शुरू हो गई थी। राइट। बट वेयर एज अब जो इससे पिछली जनरेशन है, तो आयरनी इज कि इस समय जो पावर में लोग हैं, कौन है? जो 60s में है, 50s में है, 40s में है, 30s में है। राइट। राइट। और जो नई वर्कफोर्स है वो 20s में है, जिन्हें हम जेंजी बोलते हैं, या उस हिसाब से बात करते हैं। तो वो जो गैप है, सिर्फ 30s वाला कुछ हद तक समझ पा रहा है। इवन 40s में भी जो लोग हैं, सिर्फ 45 तक आई वुड से वो लोग अभी समझ पा रहे हैं। उसके आगे वालों को भी वो चीजें आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। फिर उस चक्कर में क्या होता है कि यार ये तो किसी काम के नहीं है, कि यार इतना मत्था कौन मारेगा। तो ये एटीट्यूड हैज टू चेंज फर्स्ट। वी, इंस्टेड ऑफ ज्ञान देने की जगह सुने, समझे, राइट। फिर उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज को रिवैम्प किया जाए, so that you you can get the best out of this generation. Right, sir. So also this point about the policies, तो इस पे भी there has been a lot of conversations कि काफी leaders को they had to change their leadership style just because of this new generation. तो since you are also dealing with a few Gen Zs, क्या आपको कुछ ऐसा change करना पड़ा अपने in general जो आप पहले यूज करते थे style of leading them? Oh yes, yes, 100%. You can पहले मैं बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल मेथड्स पे चलता था, जो मेरे फादर के टाइम पे यूज होते थे। तो वो उस समय वो ये एक बना हुआ है ना कि स्टीरियोटाइप के ऐसे ही रेडी होना है, शर्ट्स पहननी है, ऐसे ही होना है। तो अभी रिसेंटली व्हाट वी डिड इज कि हमने शर्ट्स की जगह टी शर्ट्स कर दी हैं। Okay. सो वी, अगर हमने यूनिफॉर्म रखी है तो हमने वो कन्वर्टिंग फ्रॉम, मतलब इंस्टेड ऑफ कि बोला कि शर्ट्स पहन के आओ, कि यू वेयर PCHPL टी शर्ट्स। तीन Right. दिन एक कलर, 2 दिन एक कलर, सैटरडे चिल। अभी फोर्थ सैटरडे हमने ऑफ कर दिया है मंथ का। तो दिस इज अ चेंज व्हाट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन। प्लस जो मैं शुरू से करना चाहता था, एंड द रीजन ऑल्सो के ऑर्गेनाइजेशन बनाने के पीछे के, एक ना इंक्लूसिविटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सर मैम वाला है ना अभी भी इंडिया में, मुझे सही नहीं लगता ये। मैं तो कहता हूँ कि नाम से बुलाना चाहिए एक दूसरे को। ये बहुत Right. ज्यादा है, और हम एक दूसरे की ईगोज बस बूस्ट करते हैं और कुछ नहीं होता। तो दिस आई वुड लव टू चेंज इन फ्यूचर एज वेल। आई बिकम मोर मोर चिल नाउ इन लॉट ऑफ वेज, एंड वो गैप सा कर दिया है। इनफैक्ट वी 3 ड्राइवर्स इन द ऑफिस, बट अब क्या होता है, मैं अकेला गाड़ी ले जाता हूँ। वो ना जो सर मैम वाली चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा Hierarchy. आपको। या और यस एग्जैक्टली, यू नीड टू बी मोर फ्रेंडली। एंड जो वर्क एनवायरनमेंट है, वो कहते हैं ना पूरा, जैसे स्कूल की तरह नहीं चला सकते। हाँ, Right. डिसिप्लिन होना चाहिए, बट डिसिप्लिन शुड नॉट बी एवरीथिंग। Right. Right. वहां पे आपको एक एक ब्रेक करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, सो दैट Right. एवरीबडी इज एबल टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स इन द बेस्ट वे। क्या चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को? ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि जो उनका जो उनकी टीम है, पहले तो ये शब्द एम्प्लॉय खत्म होना चाहिए। एम्प्लॉय मत बोलो, ठीक है, आपके उस पे आ रहा है। जो आपकी टीम में लोग हैं, दे शुड फील इंक्लूसिव। Right. उनको ये ना लगे कि यार ये बस फरमान दे दिया कि ये करना है बस ना। Hmm. वो एटीट्यूड चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और शेमिंग हैज टू चेंज। मैं पर्सनल लेवल पे, as an individual, I've changed a lot, especially in the last 6 months, and because I interact with a lot of, uh, you know, जो कहते हैं ना, जिसे हम लेटेस्ट जनरेशन कॉलेजेस से, वो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो रही है। और उस इंटरेक्शन की वजह से
एंड आई एम अंडरस्टैंडिंग हाउ मच पोटेंशियल दिस जनरेशन हैज, अगर सिर्फ समझा जाए। जिस राइट, चीज को बनाने में हमें इतने साल, या मुझे भी 12-13 साल लगे, ये 3-4 साल में कर सकते हैं। राइट. सिर्फ समझने की जरूरत है। Right, sir. Sir, and also I feel like कि since आप millennial से करते हो, तो you can also a part of Gen Z's you can also relate to. So when we talk about ये rewards and everything in a workplace, this thing might not be बहुत ज़्यादा in fashion when you started working. So what shift have you seen in this particular segment, the देखो, recognition rewards part? रिकॉग्निशन रिवॉर्ड्स ना अगेन सब्जेक्टिव है। हर बंदा अलग तरीके से सोचता है। Right, अगेन मैं कह रहा हूँ कि जो जैसे फॉर एग्जांपल जो भी 60s में है, 50s में है, उन लोगों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने ऐसे ही देखा है, ऐसे ही काम होता है और ऐसे right, ही होना होता है, रिजल्ट ऐसे ही आते हैं। जब तक आप डंडा नहीं दोगे लोगों को, तो लोग काम नहीं करेंगे। तो right, आपको वो चीजें करनी है, और रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन भी उस हिसाब से होता है कि मतलब थोड़ा थोड़ा देते रहो। वो चीज right, कि साल बाद अप्रेजल हो, और वो सब जो भी चीजें होती है, right, वो 9 to 6 वाला जो सिस्टम बना होता है। right. लाइक फ्रॉम डे वन आई वॉज क्लियर कि मुझे ऐसा नहीं करना, जब ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू की थी। इनफैक्ट इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम इवन टू कम इन टर्म्स विद माय फादर कि ऐसे नहीं होता। अभी भी होती हैं चीजें, ये गैप्स आते हैं कि क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड्स पे काम करते हैं, उनको लगता है ऐसे ही होगा। एंड आई एम Right, लाइक, मैं उस पे होता हूँ बेंड, हेल बेंड अपॉन होता हूँ कि नहीं, वी हैव टू चेंज। इनफैक्ट right, ऑनेस्टी बोनसेस वी हैड बीन गिविंग। फिर उसके बाद अभी भी राइट नाउ आल्सो, कोई भी हो, कैसा भी काम कर रहा हो, रिकग्निशन नॉट ओनली मॉनेटरी बट इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क और इन टर्म्स ऑफ देयर पैशन आल्सो, right, वी लव टू गिव दैट इन जनरल आल्सो। और अप्रेजल्स का भी ऐसे है कि इफ यू परफॉर्म इन 3 months 6 months, तो व्हाई टू वेट फॉर अ ईयर, right. डू That इट। is true. और वो ऑफिस पॉलिटिक्स वाला मैं मिनिमाइज करता हूँ कि नो बडी कैन, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, एवरीवन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटीज। और जो Right. ग्रो करना चाहता है कोई नहीं रोक सकता। और ये जो गॉसिप है और ये जो पॉलिटिक्स है, इससे कोशिश रखता हूँ कि मैक्सिमम मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचा के रखूँ, क्योंकि यही डेटरिंग फैक्टर्स होते हैं एनीवन। Very true, sir. Like politics has always been a distracting factor for a lot of people who go into the workforce. And also, sir, like so this concept of work from home, which came after COVID mostly, and जो ये वाली generation के लिए बहुत comfortable mode है. So what are your views on this entire concept? देखो, वर्क फ्रॉम होम तो एक मजबूरी थी, प्रैक्टिकली कोविड की मजबूरी थी और कुछ नहीं था, अदरवाइज ये कभी भी इंट्रोड्यूस ना होता। ये एक Right, रियलिटी है। वर्क right, फ्रॉम होम से कुछ कंपनीज हैं, उनको ये बेनिफिट हुआ कि उनको ऑफिस के खर्चे बचने लगे, कोई right, भी कहीं से बैठा है। बट आई फील के वी आर सोशल एनिमल्स, वी ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। right, आप रोज, मैं कहता हूँ हफ्ते में 1 दिन 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर लिया, दैट्स फाइन। right, बट आप जब जाते हो ना कहीं पे, तैयार होके जाते हो, तो एक एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी बॉडी में चलती है। जब हम लोगों से मिलते हो, सोशलाइज करते हो, तो वी आर सोशल एनिमल्स। हम अकेले रहने वाले लोग नहीं हैं, अनटिल अनलेस यू आर हाईली मेडिटेटिव और उस स्टेट में रह रहे हो। Mhm. तो Right, मुझे ऐसा लगता है कि ओवर ग्लैमराइज कर दिया है हमने वर्क फ्रॉम होम को, और ये एक एक कंफर्ट बना लिया है, बट इट इज मोर डिस्कम्फर्टिंग। आप right, अगर जहां पे मजबूरी है वहां जरूर रखो, right, बट वो हाइब्रिड चला लो अगर ज्यादा से ज्यादा। पर वर्क फ्रॉम होम 100% तो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज आई सी पीपल पर्सनल लेवल पे भी वो डिग्रेड करते हैं। हेल्थ डिग्रेड होती है, right, सोशली डिग्रेड होते हो, सारा दिन एक ही कमरे में पड़े हो, वही घर चार दीवारी में हो। right, right, right. और आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उन लोगों को ही नहीं जानते आप, Right. कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे वो पैशन आएगा। तो ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगेन व्हाट आई एम कमिंग बैक टू इज, वी नीड टू, हमें याद रखना है कि हम वी आर ह्यूमंस, वी Right, आर नॉट रोबोट्स। और हमें right, जिंदगी भी वैसे ही जीनी चाहिए। right.
that is like uh, so like even when we talk about the workplace, तो जैसे आप देख रहे होगे कि बहुत multiple generations are there on the same time. तो क्या आपको ऐसा लगा कि when a millennial was working with a Gen Z was working with some other generation, तो ऐसा कुछ इनमें clashes थे by the way they work, क्योंकि since probably traditional versus more tech advanced, something, क्या आपको ऐसा लगा कि workplace में there was something around देखो, that? मिलेनियल्स के साथ तो बहुत कम होता है। जो से पिछली जनरेशन, जिन्हें कहते हैं, हमें जेन एक्स कहते हैं, या फिर वो बेबी बूमर्स और ये बोले, Yes, yes. उनके साथ जरूर मैंने बहुत देखे हैं। और वो होता भी है, क्योंकि इनकी बातें उनको नहीं समझ आती। मिलेनियल्स फिर भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और थोड़ा बेंड भी हो जाते हैं कुछ Right, चीजों में। दिक्कत ये आती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि अनएबल टू टेक बेसिक स्ट्रेस, वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। और पेशेंस नहीं है, अभी चाहिए अभी। इम्पल्सिव जो बिहेवियर है ना, वो थोड़ा सा right, ज्यादा बढ़ गया, कि मुझे right, अभी आज मैंने शुरू किया, मुझे मुझे 6 महीने में रिजल्ट चाहिए, नहीं आ रहा, मुझे लाइफ का पर्पस नहीं दिख रहा। ये सब चीजें ना, ये इरिटेट कर जाती है हमें, कि टाइम लगता है हर right, चीज को। टू रिलैक्स, गो विद इन। पहले हम इस अपने आप को स्ट्रॉन्ग, और मैं यही बोलता हूँ, डिजिटल डिटॉक्स ले लिया करो बीच में, आपको समझ आ जाएगा। मे बी right, गो बैक टू द बुक्स। अगर बुक्स में नहीं जाना, सिर्फ बैठ के, मैं सच में कह रहा हूँ, सिर्फ आसमान को देखने लग जाओ, इमेजिन कर, इमेजिनेशन इज गोइंग डाउन डे बाय डे। right, हम इतना हुक हो चुके हैं इन डिवाइसेस से, कि जिस जिस वजह से हम रियल वर्ल्ड से टूट रहे हैं, और अंदर से बेचैनी आ रही है। तो right, वो एक बहुत ज्यादा इरिटेट करती है चीज कई बार हमें, कि आप थोड़ा शांति रखो, रिलैक्स हो, और गो बैक टू द बेसिक्स। और हर चीज को टाइम लगता है, बट एट द सेम टाइम डोंट बी इराटिक। right, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म थोड़े गोल लेके चलो, कि 1 साल का गोल लेके चलो, और उसको कंसिस्टेंसी की कोशिश करो करने की। हाँ, मेक इट फन। फन करके चलो, मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती कर रहे हो। तो ये कई बार होता है, बट कम है। मिलेनियल्स फिर भी समझ जाते हैं। बस मिलेनियल्स को यही होता है कि एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ड्रॉप आउट रेशियोज इन जेंजीज इज टू हाई। 6 महीने साल से ज्यादा एक कंपनी में लोग लगाते ही नहीं है। right, और क्या है कि देर इज थिन लाइन बिटवीन बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बीइंग रूड। right, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, रूड होने को स्ट्रेट फॉरवर्ड का नाम दे देते हैं। right, और गुरु शिष्य परंपरा बिल्कुल भूल रहे हैं, विच इज अ रॉन्ग थिंग। right, गुरु की इज्जत होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडली हो गुरु के साथ, बट गुरु के सामने गालियां मत दो, ये चीजें मत करो। कॉलेजेस में कई बार जाता हूँ, देख रहा हूँ, प्रोफेसर जा रहे हैं, डीन आगे से जा रहा है, उसके आगे से गालियां देके जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसको नहीं गालियां दे रहे, मतलब आपस में दोस्त भी। right, दिस कंडीशन यू, और ये मैं इसको, ये कूल नहीं है। दिस इज नॉट कूल। बीइंग कूल इज, बीइंग डिसेंट समटाइम्स। तो वो चीजें थोड़ी सी होती। right. So do you think this all is happening also because of a lot of impact of social media that has on us? क्योंकि जितना पहले people were influenced by social media, it's much different now. क्योंकि every you see a 10-year-old earning so much. तो वो वाली चीजें, when you see so many examples like that, probably do you think that might have an impact on this यस generation? यस, 100%, आई 100% अनाउंस दैट। तो वो तो है ही है, उसको तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते। और यही जो है ना, कि सोशल मीडिया पे नंबर्स अच्छे हैं, तो आप इन्फ्लुएंसर का शब्द ही गलत है। Right, आपके सोशल मीडिया पे अच्छे नंबर आ गए, तो आप इन्फ्लुएंसर बन गए। क्या कर रहे हो, क्या पता आप, जो इन्फ्लुएंसर हो रोज फेक जिंदगी जी रहा हो, क्योंकि उसको right, नंबर्स मिल रहे हैं, उसको पैसा मिल रहा है, रियलिटी से दूर जा रहे हैं। सो वी आर नॉट, जस्ट बी द रियल यू। मैं ये बस सबको कहना चाहता हूँ, अगर आप रियल रहोगे, तो कभी भी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। इन्फ्लुएंस होना है सही लोगों से हो, कि जो आपको हम्बल बनाए, जो आपको कहे कि अच्छे इंसान बनो, कुछ अच्छा लाइफ में करो। और
जो एक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कई तो उनमें से सोशल मीडिया पे है ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या, दे आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स, दे आर नॉट डूइंग गुड। Right. आई हैव डन पॉडकास्ट विद अ फ्यू पीपल जो सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, बट दे आर डूइंग ग्रेट इन लाइफ। Right. ये डिजिटल डिटॉक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, एंड रन Right. आफ्टर एक्सीलेंस, मनी विल फॉलो, एंड मनी शुड नॉट बी एवरीथिंग। Right. हर किसी की किस्मत अलग होती है, एंड जस्ट बी रियल, डोंट ट्राई टू बी समबडी एल्स, जस्ट बी यू। और सेल्फ डाउट में मत जियो, लव योर सेल्फ। ये मेरी टेडेक्स टॉक का भी यही था कि वी हैव फॉरगॉटन टू लव आवर ओन सेल्व्स। लव योर ओन सेल्फ। That is true. That is true, sir. Because of like this glamorous identities that we see on social media, we feel like our life should also be just like that, and probably we're forgetting the basics that you just said. Uh, पता नहीं ना उसमें कितने फिल्टर्स लगे हुए हैं, हम जो चीज देख रहे True. हैं, दैट्स नॉट True. रियल, राइट? दैट इज व्हाई इट इज अ रील। That is true. That is true. So, sir, last question. If there is just one advice that you want to give to this generation, what would it be? वन एडवाइस, ऑलमोस्ट सब कुछ बोल ही दिया वैसे तो। एडवाइस नहीं मैं कोई दूंगा, बस रियलिटी के पास रहो। ये मत समझो कि पिछले सब बेवकूफ थे और सबको वो भी सही थे। थोड़ा वो आगे बढ़े, थोड़ा आप आगे बढ़ो, एंड spend more time with your own self and be happy in your own skin, and short term results की तरफ मत जाओ। take time, keep patience, and become more human। थोड़ा सा ह्यूमैनिटी, सेंसिटिविटी, वो इंपॉर्टेंट है। Right. और मतलब सिर्फ भागे ना हम। एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू रियलाइज कि आज अगर कोई 60 साल का है तो वो भी कभी 20 या 22 का या 25 का था। तो वो उनको भी समझना चाहिए, और हमें भी समझना चाहिए कि आज हम किसी को इस एज में देख रहे हैं तो वो भी इस एज से निकला है। अगर वो कुछ कह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, तो सुन ले। Right. इंप्लीमेंट करना नहीं करना वो आपकी मर्जी, एटलीस्ट सुनो, समझने के लिए, रिएक्ट करने के लिए नहीं, सिर्फ Right. समझने के लिए। बट एट द सेम टाइम ताली दोनों हाथ से बजती है, तो मैं ये सिर्फ इस जेंजीज को नहीं बोलूंगा, मैं सभी को बोलूंगा कि प्लीज लिसन टू देम ऑल्सो, अंडरस्टैंड दैम। क्योंकि ये जो है, अब वो टाइम नहीं है कि आप सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर और ये सब बनोगे। अब यू कैन हैव umpteenth number of professions in your life and you can do great. Yeah. Right. Right. So thank you so much for reminding us to take it slow. Then we are doing it. And thank you so much for being here. For our listeners, I will be attaching Sir's YouTube link where he does amazing, amazing podcast. And thank you so much for being Thank here, you. sir. No, thank you. Thank you for recognizing our podcast. So thank you. Yes.